Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 15 of your class 8 science, that is some natural phenomena. So let's see question number 1. Which of the following cannot be charged easily by friction? Cannot यहाँ पे बोला गया है. First, a plastic scale, a copper rod, an inflated balloon or a woolen cloth. सो आपको क्या बोलना है. देखो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस गिवन है. इन चारों में से कौन सा में फ्रिक्शन के बाद भी चार्ज नहीं होता है, वेदर इट इज़ ए प्लास्टिक स्केल और ए कॉपर रॉड और एन इन्फ्लेटेड बैलून और ए वुलन क्लोथ. तो देखो यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है दैट इज़ आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ प्लास्टिक स्केल, इन्फ्लेटेड बैलून एंड वुलन क्लोथ. तो फ्रिक्शन के वजह से इन तीनों में क्या होता है, चार्ज आ जाता है. बट जो कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड में फ्रिक्शन के बाद भी चार्ज नहीं होता. सो एक कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. देखो जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स है सिर्फ उसी में ड्यू टू फ्रिक्शन चार्ज होता है. बट सिंस कॉपर क्या है, कॉपर एक मेटल है, दैट इज कॉपर क्या है, कॉपर इज ए कंडक्टिंग मटेरियल एंड हैंस it cannot be charged by friction. So next is a question number 2. When a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the rod and the cloth both acquire positive charge. Second point, becomes positively charged while the cloth has a negative charge. Third point, and the cloth both acquire negative charge. And the last point is becomes negatively charged while the cloth has a positive charge. So this question is very important from exam point of view also. When a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the rod becomes positively charged while the cloth has a negative charge. क्योंकि देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है, जब कोई भी टू ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अगेंस्ट में रब्ड होते हैं देन दे एक्वायर ऑपोजिट चार्जेस. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन. जैसे हमने देखा जब ग्लास रॉड को रब किया गया विद सिल्क, देन जो ग्लास रॉड है वो क्या होता है, ग्लास रॉड जो अपना इलेक्ट्रॉन्स है उसको लूज कर देता है एंड वो गेन कौन कर लेता है, सिल्क क्लोथ. दैट इज द ग्लास रॉड लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड सिल्क गेन्स इलेक्ट्रॉन्स. एंड दैट इज़ वाई क्या होता है, जो ग्लास रॉड है इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड. So next is a question number 3. Write T against true and F against false in the following statement. First statement is like charges attract each other. So you have to tell whether this statement is true or false. So the given statement is actually false because जैसे हम लोग एग्जाम्पल अगर ले, वन नेगेटिव चार्ज एंड एक और है आपका नेगेटिव चार्ज, तो दोनों क्या है यहाँ पे लाइक चार्जेस है. तो लाइक चार्जेस इंस्टेड ऑफ गेटिंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर दे रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं. सो द कॉन्सेप्ट इज like charges repel each other and unlike charges attract each other. Thus, two negative charges repel one another while a positive charge attracts a negative charge. Part B. A charged glass rod attracts a charged plastic straw. The given statement is true because charged glass rod has positive charges on its surface while a charged plastic straw has negative charges on its surface, and we know that unlike charges attract each other. And that is the reason why a charged glass rod which has positive charges on it attracts a charged plastic straw which has negative charges on it. Part C. Lightning conductor cannot protect a building from lightning. The given statement is false because lightning conductors can protect a building from lightning. So ये सब क्या है, conceptual based question. If you know the concept, if your concept is very clear, then आपको कोई भी question answer करने में बहुत ही easy हो जाएगा. So how does lightning conductor works? जो lightning conductor है वो building में इंस्टॉल किया जाता है. सपोज लाइक हैवी लाइटनिंग हुआ तो हमें बचाने के लिए वो इसको लगाया जाता है. सो हाउ डज लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग फ्रॉम गेटिंग स्ट्रक बाय लाइटनिंग? इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल. देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ एंड कोई सपोज लाइक टॉप बिल्डिंग पे रह रहा है तो हैवी चांसेस उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा.
So what does it do? The lightning conductor does not allow the charge to accumulate on a building. एंड ये जो क्या होता है, ये जो सारे चार्जेस है वो इसको ट्रांसफ़र कर देते टू द अर्थ, जिसको अर्थिंग भी बोला जाता है, thus protecting the building from being struck by lightning. So I hope it's clear. Last part, earthquakes can be predicted in advance. The given statement is false because earthquakes cannot be predicted in advance as there is no instrument invented till now to detect earthquakes in advance. Maybe in future ऐसा हो सकता है, but till now ऐसा कोई भी instrument invent नहीं हुआ है. So next is a question number 4. Sometime a crackling sound is heard while taking off sweater during winters. Explain. So I'm sure you all have experienced it at least once in your life. तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली विंटर सीजन्स का बात कर रहे हैं. जब हम लोग विंटर्स में क्या करते, स्वेटर्स पहनते. स्वेटर्स को जब हम लोग निकालते तब क्या होता है, क्रैकलिंग साउंड हमें ऑफन सुनाई देता है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द रीज़न बिहाइंड दिस दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. So what you will write? Normally, sweater is made of wool and the other inner clothes like shirts are made up of cotton and synthetic fibers. Due to friction among these, static charge gets accumulated on the sweater. While taking off sweater, an electric discharge occurs between sweater and the body, which results in forming of sparks and crackling sound. तो देखो नॉर्मली क्या होता है, जो स्वेटर है वो वुल का बना होता है एंड जितने भी अदर इनर क्लोथ्स है जैसे शर्ट एग्जांपल हमने ले लिया, वो क्या होता है, ईदर कॉटन होता है या फिर सिंथेटिक फाइबर्स होता है. एंड देखो ड्यू टू कांस्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन आवर बॉडी एंड स्वेटर क्या होता है, स्टैटिक चार्जेस एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं स्वेटर में. स्टैटिक चार्ज यानी एक ऐसा फेमिलियर इलेक्ट्रिक फेनोमेनन है जहाँ पे जो चार्ज्ड पार्टिकल्स है वो वन बॉडी से अनदर बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तो जब हम लोग स्वेटर्स को निकालते हैं तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑकर होता है बिटवीन आवर बॉडी एंड द स्वेटर. यानी एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एंड दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मिंग ऑफ स्पार्क्स एंड क्रैकलिंग साउंड. So next is a question number 5. Explain why a charged body loses its charge if we touch it with our hand. So ये again एक conceptual based question है. तो suppose कोई body में charged है, उस charged body को जब हमने हमारे hand से touch किया तो वो उसका जो charge है वो उसको lose कर देता है. So what is the reason behind this that you have to explain? Human body is a good conductor of electricity. A charged body loses its charge when we touch it with our hand because the charges get transferred through our body to earth, and this process of transferring of charges from charged body to earth is known as earthing. जो ह्यूमन बॉडी है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है एंड सपोज लाइक कोई चार्ज बॉडी है एंड हमने उसको टच कर लिया विथ आवर हैंड्स, तो ये क्या होता है, इट लूजेस इट्स चार्ज बिकॉज देखो इसके पीछे रीज़न क्या है. सपोज लाइक हमने टच कर लिया, देन व्हाट हैपन्स, द चार्जेस गेट ट्रांसफर्ड थ्रू आवर बॉडी टू द अर्थ. हमारे बॉडी से ट्रांसफ़र होके ये अर्थ में चला जाता है एंड इसी प्रोसेस को अर्थिंग भी बोला जाता है. So let's understand this once again. When we touch a charged body with our hand, suppose एक body है उस पर charges है, then what happens? Our body conducts its charges to the earth. Since हमारी human body क्या है? It is a good conductor of electricity. Hence, by this way, charged body loses its charge. So I hope it's clear. So next is a question number 6. Name the scale on which the destructive energy of an earthquake is measured. An earthquake measures 3 on this scale. Would it be recorded by a seismograph? Is it likely to cause much damage? सो ये जो क्वेश्चन है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट में आपको बोलना है जैसे सपोज लाइक अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक का जो एनर्जी है उसको हम लोग कौन सा स्केल से मेजर करते हैं, दैट यू हैव टू टेल. अभी देखो सेकेंड पार्ट में आपको बोला ये जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है अर्थक्वेक का, इसको जब मेजरमेंट किया गया स्केल पे तब 3 आया. तो ये जो 3 आया क्या इसको हम लोग
सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड इज इट लाइकली टू कॉज एनी डैमेज, ये आपको बोलना है. नाउ लेट्स सी द आंसर. Richter scale measures the destructive energy of an earthquake. Yes, seismograph can measure an earthquake of magnitude 3 on Richter scale. It is of low intensity and will not cause any damage. So आपको उसके पहले डेफिनेशन जानना पड़ेगा. व्हाट इज़ रिक्टर स्केल, व्हाट इज़ सिस्मोग्राफ. देखो, जो रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट लिया जाता है जो क्या करता है, कितना स्ट्रेंथ या फिर कितना मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक था उसको न्यूमेरिकल मेजरमेंट लिया जाता है. एंड सिस्मोग्राफ क्या है, सिस्मोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है एंड ऑल्सो रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक को. सो ये है आपका डेफिनेशन. सो नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज इट वंस अगेन. रिक्टर स्केल से अर्थक्वेक का डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को मेजर किया जाता है, ये आपका फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में जैसे बोला था मैग्नीट्यूड आया 3 रिक्टर स्केल में, तो क्या इससे सिस्मोग्राफ से हम इसको मेजर कर सकते हैं. देन यस, एन अर्थक्वेक मेजर्स 3 विल बी रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ. एंड इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज, तो इसका आंसर देखो क्या होगा. इट इज़ नॉट लाइकली टू कॉज मच डैमेज एज अर्थक्वेक अगर मैग्नीट्यूड का हाइयर आ गया 5 का, दैट इज़ जो मैग्नीट्यूड अगर वो 5 से ज़्यादा हो गया, देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर. बट सिंस ये 5 के नीचे है, देन ये क्या है, लो है. लो का मतलब है लो इंटेंसिटी है, ज़्यादा कोई डैमेज कॉज नहीं करेगा.